جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ کمپیوٹر میں کسی پروگرام پر کام کرنے کے لیے آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، کیا آپ ہمیں آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں تفصیل سے بتا سکتی ہیں؟ بالکل روہن، چلو ہم آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ایک پروگرام ہے جو کمپیوٹر کے دوسرے پروگراموں سے آپسی رشتہ قائم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کے بغیر کمپیوٹر بیکار ہے۔ آپریٹنگ سسٹم استعمال کردہ اور کمپیوٹر کے بیچ ایک بچولیے کا کام کرتا ہے۔ سبھی پروگراموں کو چلانے کے لیے آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپریٹنگ سسٹم خود ہی چالو ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کو شروع کرتے ہی آپریٹنگ سسٹم خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کے خاص کام ہیں: یہ کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے سبھی حصوں کو معقول رابطے میں لاتا ہے۔ یہ استعمال کردہ اور کمپیوٹر کے بیچ روایتی رشتے کو آسان بناتا ہے۔ یہ سبھی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو قابو میں رکھتا ہے۔ یہ کمپیوٹر پروگرام کی عمل آوری پر قابو رکھتا ہے۔ یہ کمپیوٹر کی خاص میموری کے استعمال کو منظم کرتا ہے۔ یہ فائلوں کو منظم کرنے اور ان سے کام لینے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا کیریکٹر یوزر انٹرفیس اور دوسرا گرافیکل یوزر انٹرفیس۔ ایک ایک کر ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کیریکٹر یوزر انٹرفیس یعنی CUI میں کسی طرح کے آئیکن یا تصویر نہیں ہوتی ہیں، یہ صرف متن اور حروف پر چلتا ہے۔ ہم CUI پر خطی ہدایات جیسے ری نیم، CLS، CD، MD اور DDIR یا ڈائریکٹری پر کمانڈ دے کر کام کر سکتے ہیں۔ CUI کی ایک مثال ہے ڈسک آپریٹنگ سسٹم۔ گرافیکل یوزر انٹرفیس یعنی GUI کے پس منظر والی تصویر ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ بہت سارے آئیکن بھی ہوتے ہیں۔ GUI کی مثال ہیں ونڈوز XP، ونڈوز NT، ونڈوز 7 اور Ubuntu۔ GUI کو دوبارہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: مالکانہ سافٹ ویئر اور آزاد سافٹ ویئر۔ مالکانہ سافٹ ویئر ایک طرح کا کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے جس کی اجازت کاپی رائٹ والے شخص کے پاس مخصوص قانونی حق کے تحت ہوتی ہے۔ مالکانہ سافٹ ویئر کے استعمال کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کو فیس ادا کرنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ ان کا استعمال قانونی اجازت کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ استعمال کردہ ان کو نہ تو بدل کر سکتا ہے اور نہ ساجھا، نہ ہی پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ تقسیم کر سکتا ہے۔ مالکانہ سافٹ ویئر کی عام مثالیں ہیں مائکروسافٹ، ایپل، INC، IBM، آپریٹنگ سسٹم اور یونیسس۔ یہ وہ سافٹ ویئر ہے جن کو استعمال کردہ انٹرنیٹ سے بغیر کسی فیس کے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ یہ ایک کھلے لائسنس ذرائع کے تحت دستیاب ہوتے ہیں جو استعمال کردہ کو سافٹ ویئر بدلاؤ کرنے، ساجھا کرنے اور دوبارہ تقسیم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ حالانکہ بدلاؤ کرنے کے لیے کاپی رائٹ حقوق نہیں دیے گئے ہوتے ہیں۔ آزاد سافٹ ویئر کی عام مثال ہے لائنکس، یونکس، اورورا UX اور اوپن سولرس۔ ہمیں مائکروسافٹ ونڈوز کے بارے میں جاننا چاہیے، جو کہ سب سے زیادہ مقبول آپریٹنگ سسٹم ہے۔ ارے ہاں، میں نے مائکروسافٹ ونڈوز کے بارے میں بہت سنا ہے۔ مائکروسافٹ ونڈوز مائکروسافٹ کے ذریعے توسیع شدہ اور فروخت شدہ گرافیکل انٹرفیس آپریٹنگ سسٹم کی کڑی ہے۔ زیادہ تر جن کمپیوٹروں کا ہم استعمال کرتے ہیں ان میں مائکروسافٹ ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم پری لوڈڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سافٹ ویئر کو مائکروسافٹ کی ویب سائٹ سے آن لائن بھی خریدا جا سکتا ہے۔
GUI इंटरफेस प्रोग्राम इस्तेमाल करने और उनको मुनज़्ज़म करने में आपकी मदद करता है। विंडोज इस किस्म के इंटरफेस होते हैं जिसका मतलब है कि जो आप देखते हैं वही आप हासिल करते हैं। अगर आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो कंप्यूटर शुरू करते ही सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। आप विंडोज डेस्कटॉप का इस्तेमाल सभी प्रोग्राम चलाने और मुनज़्ज़म करने में कर सकते हैं। डेस्कटॉप 2 हिस्सों में तकसीम होता है, खास हिस्सा या विंडोज डेस्कटॉप और टास्क बार। नीचे पतली पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है जिसके जरिए हम कंप्यूटर के दूसरे प्रोग्रामों तक पहुंच सकते हैं। टास्क बार के पस मंजर को वॉलपेपर कहते हैं। कंप्यूटर शुरू करने पर सबसे पहले नजर आने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप पर नजर आने वाले छोटे छोटे फोटो आइकन कहलाते हैं। ये आइकन फाइल, प्रोग्राम और फोल्डर के शॉर्टकट हैं जिनके जरिए इनमें आसानी और जल्दी से पहुंचा जा सकता है। स्क्रीन के सबसे नीचे उफ़क़ी के मुतवाज़ी पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार एक तरफ स्टार्ट बटन और दूसरी तरफ कई छोटे छोटे आइकन और शॉर्टकट होते हैं। कंप्यूटर पर चल रहे सभी एप्लीकेशन और प्रोग्राम टास्क बार पर आइकन की शक्ल में नजर आते हैं। एप्लीकेशन और प्रोग्राम इन्हीं आइकन के जरिए एक्सेस यानी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टास्क बार कंप्यूटर पर चलने वाली बहुत सी प्रोग्रामों के दरमियान स्विच करने का एक आसान तरीका फराहम कराते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन या प्रोग्राम चल रहे हों और टास्क बार पर सभी आइकनों के लिए जगह कम हो तो एक तरह के आइकन एक ग्रुप में आ जाते हैं। स्टार्ट बटन के जरिए आप दूसरे प्रोग्राम और सिस्टम की दूसरी इफादियत का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में मौजूद कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल कंप्यूटर में मुख्तलिफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू की हेल्प और सपोर्ट मेन्यू का इस्तेमाल विंडोज पर काम के दौरान जरूरत पड़ने पर मदद हासिल करने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू की मदद से आप सिर्फ एक क्लिक में कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, लॉग ऑफ या दोबारा शुरू कर सकते हैं। ज़ेली अमल से आप अपने सिस्टम की तारीख और वक्त को बदल सकते हैं। पहले टास्क बार पर दाईं तरफ नजर आ रहे तारीख और वक्त पर क्लिक करें। तब एक घड़ी और कैलेंडर जाहिर होगा। टास्क बार पर तारीख और वक्त पर क्लिक करें। तब वक्त और तारीख की सेटिंग लिंक पर क्लिक करें। तब वक्त और तारीख सेट करें। उसके बाद वक्त और तारीख बदल बटन पर क्लिक करें। समय व तारीख परिवर्तन को सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें और समय व तारीख डायलॉग कोष्ठ पर वापस आएं। चेंज को सेव करने के लिए हाँ पर क्लिक करें। वक्त और तारीख डायलॉग बॉक्स को डेस्कटॉप स्क्रीन का वो हिस्सा है जिसे आप कंप्यूटर लॉग ऑन करने पर देखते हैं। आइकनों के पीछे नजर आने वाली तस्वीर को वॉलपेपर या डेस्कटॉप का पस मंजर कहते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर को कुछ वक्त के लिए खाली छोड़ देते हैं तो एक तस्वीर या टेक्स्ट जाहिर होती है। इसे स्क्रीन सेवर कहते हैं। आप अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर या डेस्कटॉप का पस मंजर आइकनों को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकते हैं। पहला, डेस्कटॉप के खाली मकाम पर माउस का दायां बटन दबाएं। उसके बाद फहरिस्त के इनफरादी मुतबादिल यानी पर्सनलाइज पर क्लिक करें। उसके बाद डेस्कटॉप के पस मंजर लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद तस्वीर का इंतखाब करें और उसे डेस्कटॉप के पस मंजर को सेट करें। आखिर में सेव बटन दबाकर
بدلاव کو सेव करें। अगर आप डेस्कटॉप के स्क्रीन सेवर को बदलना चाहते हैं तो ये अमल अपनाएं। पहला, डेस्कटॉप के खाली मकाम पर माउस का दायां बटन दबाएं। उसके बाद फहरिस्त के इनफरादी यानी पर्सनलाइज पर क्लिक करें। डेस्कटॉप के स्क्रीन सेवर लिंक पर क्लिक करें। तब स्क्रीन सेवर का ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कर फहरिस्त से स्क्रीन सेवर का इंतखाब करें। स्क्रीन सेवर शुरू करने के लिए वेट कॉम्बो बॉक्स से इंतजार वक्त के मिनट तय करें। आखिर में सेव या ओके बटन दबाकर बदलाव को महफूज करें। अब रोहन, ये याद रखें कि एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम और इनफरादी प्रोग्रामों के लिए दस्तयाब किसी इत्तला को फाइल कहते हैं। एक फाइल एक दस्तावेज, तस्वीर, मौसीकी या फिल्म हो सकती है। बहुत सी फाइलों को एक मकाम पर रखने के लिए आप एक फोल्डर बनाते हैं। आप कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में फाइल या फोल्डर बना सकते हैं। फाइल या फोल्डर बनाने के बाद आप उसका नाम बदल सकते हैं, उसकी कॉपी बना सकते हैं, उसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं और उसे हस्बे जरूरत मिटा भी सकते हैं। हम किसी ड्राइव में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? आसान है, बस ज़ेली अमल को अपनाओ। पहले स्टार्ट बटन को दबाकर स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तब कंप्यूटर विंडो या विंडो एक्सप्लोरर को जाहिर करने के लिए कंप्यूटर पर क्लिक करें। तब डी ड्राइव में दस्तयाब अशिया देखने के लिए डी ड्राइव पर क्लिक करें। नया फोल्डर बनाने के लिए मेन्यू बार में नए फोल्डर पर क्लिक करें। नए फोल्डर को नाम दे सकते हैं और एंटर दबाएं। आप फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं जिसे सब फोल्डर कहते हैं। एक फोल्डर का इंतखाब करें और उसे खोलें। उसमें खाली मकाम पर राइट क्लिक करें तो पॉपअप मेन्यू जाहिर होगा। उसमें सबसे पहले न्यू पर क्लिक करें और फिर फोल्डर चुनें। एक फोल्डर बन जाएगा। फाइल या फोल्डर को खोलने के लिए ज़ेली अमल को अपनाएं। पहले स्टार्ट बटन को दबाकर स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तब कंप्यूटर विंडो या विंडो एक्सप्लोरर जाहिर करने के लिए कंप्यूटर पर क्लिक करें। तब डी ड्राइव में दस्तयाब अशिया देखने के लिए डी ड्राइव पर क्लिक करें। तब जिस फोल्डर को आप खोलना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें। उसे फोल्डर के अंदर जिस सब फोल्डर या फाइल को आप खोलना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें। जब आप डी ड्राइव में फोल्डर, सब फोल्डर या फाइल बनाते हैं तो खुद ब खुद न्यू फोल्डर या न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से महफूज हो जाता है। फोल्डर या वेब फोल्डर या फाइल का नाम बदलने के लिए उस पर राइट क्लिक करें। नए पॉपअप में नाम बदलें यानी रीनेम चुनें। नया नाम लिखें और एंटर दबाएं। फोल्डर या सब फोल्डर या फाइल का नाम बदल जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ मुआविन अशिया होती हैं जो बहुत मुफीद होती हैं। हम इन मुफीद अशिया में से कुछ के बारे में सीखते हैं। इन मुफीद अशिया को देखने के लिए ज़ेली हिदायत पर अमल करें। पहले स्टार्ट बटन को दबाकर स्टार्ट मेन्यू को खोलें। उसके बाद माउस को ऑल प्रोग्राम पर ले जाएं। उसके बाद एक्सेसरीज पर क्लिक करें। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों की फहरिस्त होती है। अब जो आप चाहते हैं उस एक्सेसरीज पर क्लिक करें। पेंट का इस्तेमाल तस्वीर बनाने, बदलने और फोटो देखने के लिए होता है। आप पेंट का इस्तेमाल खाली पेंट की जगह में पेंटिंग करने या मौजूदा तस्वीर में पेंटिंग करने में कर सकते हैं। आप तस्वीर की कॉपी लेकर किसी दूसरे दस्तावेज पर चिपका या पेस्ट कर सकते हैं।
हम पेंट का इस्तेमाल किस तरह करें? पेंट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन को दबाकर स्टार्ट मेन्यू को खोलें। उसके बाद माउस से ऑल प्रोग्राम पर चलें। उसके बाद एक्सेसरीज पर क्लिक करें। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों की फहरिस्त होती है। एक्सेसरीज पर क्लिक करें और पेंट का इंतखाब करें। आप देखेंगे कि पेंट विंडो को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पेंट बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, ड्राइंग एरिया और रिबन। पेंट बटन के साथ आप कई तरह के काम कर सकते हैं। पेंट बटन के मुख्तलिफ मुतबादिल हैं: खोलें, ओपन, नया, न्यू, महफूज और छापें। क्लिक एक्सेस टूल बार अक्सर इस्तेमाल में लाए जाने वाले टूल्स जैसे सेव, रीडू और अंडू फौरन दस्तयाब कराने में आपकी मदद करता है। रिबन में 2 टैब्स होते हैं, होम और व्यू। होम टैब उन टूल्स को दस्तयाब कराता है जो तस्वीर बनाने या उसे सुधारने में इस्तेमाल होते हैं। ये क्लिपबोर्ड, इमेज, ब्रश, टूल्स, शेप्स एंड कलर्स वगैरह होते हैं। क्लिपबोर्ड में 3 मुतबादिल होते हैं: कट, कॉपी और पेस्ट। जिन मुतबादिल का इस्तेमाल कर आप पेंट पर चुनी गई चीज को काट सकते हैं, कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं या चिपका सकते हैं। ये मुतबादिल एक ही मौजू को कई बार इस्तेमाल करने में आपकी मदद करता है। जिनको आप करना चाहते हैं, जैसे सिलेक्ट, क्रॉप, रीसाइज, रोटेट। टूल का इंतखाब आपको मुख्तलिफ टूल्स मुहैया कराता है जिससे आप तस्वीर बना और एडिट कर सकते हैं। ये टूल्स हैं पेंसिल, रंग भरना, लिखना, मिटाना, रंग उठाना और बड़ा करना। ब्रश में नीचे की तरफ खुलने वाला एक मेन्यू होता है जिससे आप तस्वीर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह के ब्रशों का इंतखाब कर सकते हैं। शेप मुतबादिल से आप अपनी तस्वीर को मुख्तलिफ शक्लें दे सकते हैं। रंग मुतबादिल से आप अपनी तस्वीर में मुख्तलिफ रंग भर सकते हैं। दीदी, आपने ये भी कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो के खिलाफ यहाँ मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम भी दस्तयाब है। क्या आप इसके बारे में मजीद जानती हैं? हाँ रोहन, लाइनक्स एक बहुत मशहूर, मुफ्त या आजाद मुस्तिर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सॉफ्टवेयर सबके लिए मुफ्त है और इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। चलो हम इस पर नजर डालते हैं। लाइनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही मकबूल वर्जन है जिसकी लाइनक्स टोरवाल्ड्स के जरिए तौसी की गई है। लाइनक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है। लाइनक्स की सबसे खास बात ये है कि ये बहुत ही मुतहर्रिक है। इस्तेमाल करदा इस सॉफ्टवेयर की तौसी करने, तरमीम करने या फरोग देने के लिए आजाद हैं। लाइनक्स को 2 अलग मुख्तलिफ तरीकों से हासिल किया जा सकता है: मुफ्त डाउनलोड और तक़सीम का इस्तेमाल कर। लाइनक्स सारी दुनिया में करोड़ों इस्तेमाल करदा कामयाबी के साथ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइनक्स के सभी हिस्सों को इंटरनेट से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। मुख्तलिफ कंपनियां तक़सीम को इस्तेमाल करने का एक मुतबादिल फराहम कराती हैं, जिसमें बहुत सी एप्लीकेशन और प्रोग्राम की तनसीब शामिल हैं, जो लाइनक्स की तनसीब को आसान कर देते हैं। एक बहुत मकबूल लाइनक्स एप्लीकेशन अबंटू है, जो कैनोनिकल कंपनी के जरिए फराहम किया जाता है। अब हमें अबंटू के बारे में सीखना चाहिए। अबंटू एक आज़ाद और मुफ्त सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर के जरिए हर जगह चलाया जाता है। अबंटू में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI होता है
जो इसे विंडो या एंड्रॉयड जैसे दूसरे मकबूल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बनाता है। उबंटू का वर्जन डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप माहौल की शक्ल में यूनिटी का इस्तेमाल करता है। यूनिटी डेस्कटॉप पृष्ठभूमि और 2 बार रखता है, जिसे मेन्यू बार और लॉन्चर कहते हैं। मेन्यू बार डेस्कटॉप के सबसे ऊपर वाक़े उफ़क़ी पट्टी है। लॉन्चर एक खड़ी पट्टी है जो मेन्यू बार के बाएं तरफ होती है। मेन्यू बार में आम तरह के काम शामिल होते हैं जो उबंटू 12.10 में इस्तेमाल होते हैं। जो आइकन्स मेन्यू बार के दाहिनी तरफ होते हैं उसे इंडिकेटर एरिया कहते हैं। कीबोर्ड इंडिकेटर आपके कीबोर्ड आउट का इंतखाब करने और कीबोर्ड की अव्वलियात में तरमीम करने की इजाजत देता है। मैसेज इंडिकेटर में सभी सोशल एप्लीकेशन को शामिल किया जाता है जो इंस्टेंट मैसेंजर क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट, माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशंस और इन जैसी कई एप्लीकेशंस को शामिल रखता है। नेटवर्क इंडिकेटर आपको वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क को आसानी से जोड़ने और नेटवर्क कनेक्शन को मुनज़्ज़म करने की इजाजत देता है। साउंड इंडिकेटर आवाज की मिक़दार को आसानी से सेट करने का तरीका है, चाहे ये सेटिंग आपके म्यूजिक प्लेयर में हो या आम साउंड सेटिंग हो। घड़ी सही वक्त बताती है और कैलेंडर वक्त और तारीख में तरमीम करने का आसान तरीका भी फराहम कराती है। यूजर मेन्यू आपको अलग अलग इस्तेमाल करदाओं और ऑनलाइन अशिया और इस्तेमाल करदा के खातों को दरमियान बदलाव करने की इजाजत देता है। एक सेशन इंडिकेटर सिस्टम सेटिंग्स का इस्तेमाल करने, सॉफ्टवेयर अपडेट करने, प्रिंटर डिवाइस को लॉक करने के तय्युन सेशन मुतबादिल फराहम करने के लिए कंप्यूटर को दोबारा शुरू करने या पूरी तरह से बंद करने के लिए आसान रास्ता मुहैया कराता है। एप्लीकेशन मेन्यू एक ऐसा सिस्टम है जहां हम मुख्तलिफ काम अंजाम दे सकते हैं, जैसे एडिट, व्यू वगैरह। दूसरे GIU माहौल खिलाफ यूटिलिटी में दरख्वास्त मेन्यू बार के बाईं तरफ होता है। एक खास दरख्वास्त को देखने के लिए आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करके डेस्कटॉप के मेन्यू बार पर दरख्वास्त आइकन के लिए माउस को हटा सकते हैं। ये डेस्कटॉप के मेन्यू बार में खुद को ऊपर रखकर एप्लीकेशन को फाल करेगा, इसलिए इस एप्लीकेशन को देखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही माउस को मेन्यू बार से दूर ले जाया जाता है, डेस्कटॉप दोबारा से जाहिर होता है। यूनिटी का फीचर एप्लीकेशन मेन्यू को तभी जाहिर करता है जब नेटबुक और लैपटॉप इस्तेमालकर्ताओं को इसकी जरूरत होती है, क्योंकि ये इसे ज्यादा वर्क स्पेस फराहम कराता है। उमूरी पट्टी के आइकन जो स्क्रीन के बाईं तरफ होते हैं लॉन्चर कहलाते हैं। जब ये लॉन्चर चलाया जाता है तो ये फाल आइकन्स की एप्लीकेशन तक रसाई को आसान बनाता है। लॉन्चर में सबसे ऊपर पहला आइकन डैश कहलाता है, जो यूनिटी का कोर एलिमेंट और इनोवेशन की है। एक एप्लीकेशन को लॉन्चर से रन करने अथवा पहले से रन हो रही एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने के लिए एप्लीकेशन आइकन पर क्लिक करते हैं। फोरग्राउंड में एप्लीकेशन अपने आइकन के दाहिनी तरफ एक अकेले सफेद त्रिकोण के द्वारा संकेतित किया जाता है। एक एप्लीकेशन को जोड़ने के लिए लॉन्चर के एप्लीकेशन आइकन पर दाएं क्लिक करके और लॉन्चर के लॉक का इंतखाब करके एप्लीकेशन को रन कराएं। लॉन्चर से एक एप्लीकेशन को हटाने के लिए पहले एप्लीकेशन आइकन पर दाहिने क्लिक करें और फिर अनलॉक से लॉन्चर का इंतखाब करें। डैश एक औजार है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर पर एप्लीकेशन और फाइलों के बारे में जल्द पता कर सकते हैं। डैश के बारे में पता लगाने के लिए लॉन्चर के सबसे ऊपर वाले आइकन जिस पर उबंटू का निशान बना हो उस पर क्लिक करें। डैश आइकन का इंतखाब करने पर एक और विंडो खुलती है
جس میں سب سے اوپر سرچ بار کے ساتھ ہی حال میں استعمال کیے گئے ایپلیکیشن، فائل اور ڈاؤن لوڈ کا بھی کلیکشن ہوگا۔ ڈیش آپ کو لوکل اور ریموٹ لیول پر اطلاعات تلاش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ڈیش کی 2 خاص خصوصیات ہیں، فائلوں اور فولڈر کو تلاش کرنا اور ایپلیکیشن کو تلاش کرنا۔ ورک اسپیس آپ کو ایپلیکیشن کو ایک گروپ میں جوڑنے کی اجازت دیتا ہے، جو بے ترتیبی کو کم کرتا ہے اور ڈیسک ٹاپ نیویگیشن میں سدھار لاتا ہے۔ بنیادی طور سے ابنٹو میں 4 ورک اسپیس ہوتے ہیں۔ ایک ورک اسپیس سے دوسرے ورک اسپیس پر جانے کے لیے لانچر یا ورک اسپیس سوئچر پر کلک کریں۔ یہ ایپلیکیشن آپ کو ایک ورک اسپیس سے دوسرے ورک اسپیس پر جانے کے لیے اجازت دیتا ہے۔ کلوزنگ، میکسیمائزنگ اور ریسٹورنگ ونڈوز۔ منیمائز بٹن ونڈوز کو حال میں دکھائی دینے والی اسکرین سے ہٹا کر اسے لانچر میں رکھ دیتا ہے۔ میکسیمائز بٹن ایپلیکیشن کو ونڈوز کی پوری اسکرین پر پھیلا دیتا ہے۔ ونڈوز کو بند کرنے کے لیے ونڈو کو اوپر بائیں کونے پر دیے گئے کراس بٹن پر کلک کریں۔ ونڈو کو ورک اسپیس پر ادھر ادھر لے جانے اور ہٹانے کے لیے ماؤس کے پوائنٹر کو ونڈو کو ٹائٹل بار پر لے جائیں اور ماؤس کے بائیں بٹن سے کلک کریں اور بائیں بٹن کو دباتے ہوئے ونڈو کو کھینچیں۔ ونڈو کا سائز بدلنے کے لیے ماؤس پوائنٹر کو ونڈو کے سرے پر یا کونے پر ایسے رکھیں کہ ماؤس پوائنٹر 2 طرفہ تیر میں بدل جائے، جسے ری سائز آئیکن کہتے ہیں۔ ماؤس کے بائیں بٹن سے کلک کریں اور بائیں بٹن کو دباتے رکھتے ہوئے ونڈو کو کھینچیں۔ کمپیوٹر پر فائل کا پتہ لگانے کے 2 طریقے ہیں۔ سیدھے لانچر کے ڈیش کے ذریعے جس فولڈر میں فائل رکھی گئی ہو اس کا پتہ لگا کر اس تک پہنچنا۔ عام طور پر استعمال میں لائے جانے والے فولڈر اور حال ہی میں استعمال شدہ فائلوں میں فائل اور فولڈر ٹول کا استعمال کرنا۔ گو مینیو عام طور سے استعمال میں آنے والی فولڈر کی فہرست ہوتی ہے۔ گو میں جانے کے لیے اپنے ماؤس کو بار پر سب سے اوپر لے جائیں اور گو کو چنیں۔ تب اس مینیو میں کمپیوٹر پر کلک کر کے اپنی فائلوں کو براؤز کریں۔ اگر آپ ہوم نیٹ ورک کرتے ہیں تو آپ کو ساجھا کی گئی فائل اور فولڈروں کے لیے مینیو ایکسس مل جائے گا۔ ہوم فولڈر کا استعمال انفرادی فائلوں کو جمع کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ استعمال کردہ کے لاگ ان نام سے مل جاتا ہے۔ اس میں سارے وہ فولڈر ہوتے ہیں جو تنصیب کے دوران اپنے آپ بن جاتے ہیں۔ اس میں ڈیسک ٹاپ دستاویز، ڈاؤن لوڈ موسیقی، دستاویز، پکچرز، پبلک، ٹیمپلیٹس اور ویڈیوز شامل ہیں۔ نوٹیلس فائل مینیجر۔ جیسے ونڈو کے پاس فائل اور فولڈر کو تلاش کرنے کے لیے ونڈو ایکسپلورر ہوتا ہے، اسی طرح ابنٹو فائل اور فولڈر کو تلاش کرنے کے لیے ڈیفالٹ شکل میں نوٹیلس فائل مینیجر کا استعمال کرتا ہے۔ دیدی، نوٹیلس فائل مینیجر کہاں ہے؟ بس ڈیسک ٹاپ پر ایک فولڈر پر ڈبل کلک کرو، نوٹیلس فائل مینیجر ونڈو کھل جائے گی۔ ڈیفالٹ ونڈو میں ذیلی خصوصیات ہوتی ہیں: مینیو بار، ٹائٹل بار، ٹول بار، بایاں پین اور دایاں پین۔ نوٹیلس نیویگیٹ کرنے کے ذیلی ادوار ہیں۔ فولڈر کے درمیان نیویگیٹ کرنے کے لیے نوٹیلس فائل مینیجر کے بائیں پین میں بک مارکس کا استعمال کرو۔ واپس جانے کے لیے پاتھ بار میں فولڈر کے نام پر کلک کریں۔ ایک نظر آنے والے فولڈر پر ڈبل کلک اسے نیویگیٹ کرنے میں مدد کرے گا۔ نوٹیلس کے ساتھ فائل کو کھولنے کے لیے اس کے آئیکن پر ڈبل کلک کر کے یا آئیکن پر دائیں کلک کریں اور اوپن ود کے متبادل میں ایک کا انتخاب کریں۔ نوٹیلس میں ایک نیا فولڈر بنانے و سیو کرنے کے لیے پہلے فائل پر کلک کریں اور پھر کریٹ نیو فولڈر پر کلک کریں۔
اس کے بعد بننے والے ڈیفالٹ فولڈر کا نام انٹائٹلڈ فولڈر کو اپنی مرضی کے مطابق نیا نام دیں. یہ نوٹیلس میں محفوظ ہو جائے گا. فائل یا فولڈر کو کاپی کرنے یا کاپی بنانے کے افعال ہیں. پہلے ایڈٹ پر کلک کریں، پھر آئٹم پر کلک کریں یا رائٹ کلک کریں اور پاپ اپ مینیو سے کاپی کا انتخاب کریں. اب آپ کاپی کی گئی فائل کو پسندیدہ مقام پر سیو کریں. کئی نوٹیلس ونڈوز کا پریوگ کرنا. آپ ذیل طرح سے کئی نوٹیلس ونڈو بھی کھول سکتے ہیں. پہلے فائل کا انتخاب کریں، تب نئی ونڈو پر کلک کریں. یہ نئی ونڈو کھولے گا اور آپ کو فائلوں یا فولڈر کو 2 مقامات سے ڈریگ کرنے کی اجازت دے گا. نیا ٹیب کھولنے کے لیے پہلے فائل پر کلک کریں، پھر نیو ٹیب. فائل کی براؤزنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے مقام کے اوپر 2 ٹیب والی ایک لائن کھلے گی. دوسرا پین کھولنے کے لیے ویو پر کلک کریں، پھر ایکسٹرا پین پر. یہ آپ کو ٹیب یا ونڈو کے درمیان سوئچ کے بغیر ہی 2 مقامات پر ایک ساتھ دیکھنے کی سہولت دیتا ہے. کمپیوٹر پر فائل کھولنا یا فولڈر تلاش کرنا. پہلے نوٹیلس میں گو سرچ فار فائل پر کلک کریں یا کنٹرول کے ساتھ F دبائیں. پھر جو تلاش کرنا چاہتے ہوں اسے ٹائپ کریں. ڈیش میں سب سے اوپر سرچ بار میں آپ صرف تلاش ٹرم ٹائپ کریں. ابنٹو میں لیبر آفس سب سے مقبول سویٹ ہے جو کہ ڈائٹ شکل میں ہوتا ہے. یہ بھی ویسا ہی طریقہ کار مہیا کراتا ہے جیسے کہ مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، صرف اس کے کہ یہ ایک آزاد سافٹ ویئر ہے. ان سبھی ایپلیکیشنز تک لانچر کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے. اس میں ذیلی اجزاء شامل ہیں جو کہ دوسرے آپریٹنگ سسٹم میں مختلف ناموں سے پائے جاتے ہیں. رائٹر، ورڈ پروسیسر، کیلک، اسپریڈ شیٹ، امپریس، پریزنٹیشن مینیجر، ڈرائنگ پروگرام، بیس، ڈیٹا بیس، میتھ، ایکویشن ایڈیٹر. کیا آزاد سافٹ ویئر کے بارے میں سیکھنا مزیدار نہیں تھا؟ چلو اب ہم لوگ ایک اور مزیدار کارکردگی میں حصہ لیں گے. دیدی، کیا موبائل فون اور ٹیبلٹ بھی کمپیوٹر کی طرح آپریٹنگ سسٹم رکھتے ہیں؟ ہاں روہن، آج کل موبائل فون اور ٹیبلٹ بھی پی سی کے آپریٹنگ سسٹم کی خوبیاں رکھتے ہیں. ساتھ ہی دوسری خوبیاں جیسے ٹچ اسکرین، سیلولر، بلوٹوتھ، وائی فائی، جی پی ایس موبائل، نیویگیشن، کیمرہ، ویڈیو کیمرہ، اسپیچ ریکاگنیشن یعنی آواز کی پہچان، آواز ریکارڈر، میوزک پلیئر اور دوسری خصوصیات. زیادہ تر موبائل فون میں اینڈرائڈ، ونڈوز یا سمبین آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. اچھا، میں موبائل فون کے بارے میں اور بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں. کیا آپ مجھے سکھا سکتی ہیں؟ ہاں بالکل. چلو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک موبائل فون میں مختلف سہولیات کا استعمال کیسے کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ موبائل فون سے کال کیسے کرتے ہیں. کال کرنے کے لیے کی پیڈ پر فون نمبر ٹائپ کریں. اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو ہوم اسکرین پر فون پر آئیکن پر جائیں اور اس پر ٹائپ کریں. آپ اسکرین پر نمبر پیڈ دیکھیں گے. جس نمبر پر آپ بار کرنا چاہتے ہیں اسے ٹائپ کریں. اس کے بعد بائیں طرف ہرا بٹن یا آنسر کی دبائیں. اسمارٹ فون ہونے پر ہرے بٹن پر ٹیپ دیں. اسکرین پر دکھے گا کہ نمبر ڈائل ہو رہا ہے یا کنیکٹ ہو رہا ہے. کال ختم کرنے کے لیے لال بٹن دبائیں یا لال بٹن پر ٹیپ دیں. اب ہم سیکھتے ہیں کہ کال کا جواب کیسے دیں یا کینسل کیسے کریں. کال کرنے کے لیے بائیں طرف ہرا بٹن یا آنسر کی دبائیں.
स्मार्ट फोन होने पर हरे बटन पर टैप दें। स्क्रीन पर नजर आएगा कि नंबर डायल हो रहा है या कनेक्ट हो रहा है। कॉल खत्म करने के लिए लाल बटन दबाएं या लाल बटन पर टैप दें। स्मार्टफोन होने पर बाएं से दाएं स्वाइप करें। हम पिछले मिलाए गए नंबर पर कॉल कैसे कर सकते हैं? आसान है। पहले होम स्क्रीन पर बाएं तरफ के हरे बटन पर दबाएं। ये सभी डायल किए गए, हासिल किए गए और मिस्ड नंबरों की फहरिस्त दिखाएगा। स्मार्टफोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें। ये सभी डायल किए गए, हासिल किए गए और मिस्ड नंबरों की फहरिस्त दिखाएगा। उसके बाद नंबर का इंतखाब करें और हरा बटन दबाएं। स्मार्टफोन में टैप दें, आपका नंबर डायल होना शुरू हो जाएगा। आप कॉल हिस्ट्री इस तरह देख सकते हैं। पहले स्टैंड बाय मोड में मेन्यू दबाएं। स्मार्टफोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें। तब कॉल रजिस्टर, कॉल हिस्ट्री, कॉल लॉग का इंतखाब करें। इसके बाद ये रिसीव्ड कॉल, डायल्ड कॉल और मिस्ड कॉल के 3 टैब दिखाएगा। जिस टैब को आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। ये आपको कॉल की फहरिस्त, वक्त और तारीख के साथ दिखाएगा। स्मार्टफोन होने पर सभी कॉल एक ही फहरिस्त में दिखेंगी। हरा तीर का निशान डायल की गई कॉलें, नीला तीर प्राप्त कॉलें, काला या लाल तीर मिस्ड कॉल को जाहिर करता है। आप नंबर पर फोन कर सकते हैं, नंबर को कॉन्टैक्ट बुक में महफूज कर सकते हैं या उस पर पैगाम भेज सकते हैं। फोन में आवाज कम करने के लिए ज़ेली अफ़ाल अपनाएं। सबसे पहले फोन की मेन स्क्रीन में मेन्यू बटन दबाएं, फिर ऑप्शन मेन्यू में सेटिंग पर क्लिक करें। उसके बाद सेटिंग मेन्यू में साउंड या ऑडियो का मुतबादिल चुनें। उसके बाद साउंड मेन्यू में वॉल्यूम तलाश करें। रिंगर या रिंगर टोन में वॉल्यूम कंट्रोल पाए जाते हैं। आखिर में स्पीकर ऑप्शन को चुनें और कीपैड को ऊपर नीचे कर आवाज के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके स्मार्टफोन में आवाज कंट्रोल करने वाले बटन बाहर होते हैं, जिन्हें इधर उधर दबाकर आवाज की शिद्दत को काबू किया जा सकता है। मैं अपने दोस्त अमित का फोन नंबर और नाम शामिल करना चाहता हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? आप नया नाम ऐसे जोड़ सकते हैं। जब फोन स्टैंड बाय मोड में हो तो मेन्यू दबाएं। स्मार्टफोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें। तब मेन्यू ऑप्शन में अपने फोन की फोन बुक में जाएं। ये होम स्क्रीन पर फोन की एक तस्वीर या लफ्ज फोन, फोन बुक या कॉन्टैक्ट से दिखाई गई होगी। अब दस्तयाब मुतबादिलों में न्यू कॉन्टैक्ट का इंतखाब करें। पहले जिस नंबर को आप जोड़ना चाहते हैं उसका नंबर, एरिया कोड स्क्रीन पर नजर आने वाले फॉर्म में भरें। स्मार्टफोन में नंबर पैड पर नंबर टाइप करें। ऐड टू कॉन्टैक्ट्स पर टैप दें और तब क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पर। तब फार्म में माकूल मकाम पर अपने दोस्त का पहला और आखिरी नाम लिखें। तब उसे महफूज करने के लिए सेव या ऐड टू कॉन्टैक्ट दबाएं या टैप दें। अब नया नंबर आपके मोबाइल में जुड़ जाएगा। फोन में पहले से ही महफूज नंबरों की तफसील में एडिट करने के लिए नाम का इंतखाब करें, एडिट का इंतखाब करें, टैप दें, सही तफसील टाइप करें और फिर सेव का इंतखाब करें या टैप करें। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि मैसेज कैसे भेजते हैं। पहले स्टैंड बाय मोड में मेन्यू दबाएं, तब पहले मैसेज, फिर रिटर्न मैसेज, फिर मैसेज लिखने का इंतखाब करें। एक स्मार्टफोन में होम स्क्रीन पर मैसेजिंग आइकन तलाश करें, उस पर टैप दें। आप देखेंगे कि पैगामात की पूरी फहरिस्त खुलेगी। मैसेज आइकन का इंतखाब करें। स्मार्टफोन में राइट मैसेज आइकन पर टैप दें, फिर
टेक्स्ट बॉक्स में पैगाम लिखें। तस्वीर या कुछ और जोड़ने के लिए ऑप्शन का इंतखाब करें, फिर इंसर्ट ऑब्जेक्ट दबाएं। स्क्रॉल करके नीचे पसंदीदा तस्वीर या ऑब्जेक्ट को दबाएं, फिर व्यू इंसर्ट करें। तय मकाम पर हासिल करने वाले का नंबर लिखें, या अगर आप सेव किए हुए किसी नंबर को मैसेज भेजना चाहते हैं तो फोन बुक पर क्लिक करें। नंबर का इंतखाब कर ओके पर क्लिक करें। स्मार्टफोन में हासिल करदा के नाम के कुछ अल्फाज टू कॉलम में लिखें। आप देखेंगे कि कॉन्टेक्ट बुक से नामों की फहरिस्त जाहिर होगी, जिसे आप चाहें उस नाम पर टैब दें। मैसेज भेजने के लिए सेंड पर क्लिक करें। पाने वाले को मैसेज भेज दिया जाएगा। खास फहरिस्त पर वापस जाने के लिए एंड या कैंसिल पर क्लिक करें। आप अपना मैसेज ऐसे पढ़ सकते हैं। जब आपको मैसेज हासिल होता है तो आप होम स्क्रीन में सबसे ऊपर लिफाफे का निशान देखेंगे। स्क्रीन पर आप एक बॉक्स में एक मैसेज रिसीव लिखा हुआ देखेंगे। नए मैसेज को देखने के लिए शो। दीदी, क्या हम मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल रोहन, तुम कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छा है दीदी। मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या चाहिए? मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए होगा एक मोबाइल फोन जो इंटरनेट एक्सेस या इस्तेमाल को सपोर्ट करता हो, एक मोबाइल फोन खिदमत जो डाटा ट्रांसमिशन का सपोर्ट करती हो, जैसे 2G, 3G और वाईफाई। फोन के जरिए इंटरनेट तक पहुंचने के लिए डाटा सेटिंग्स के साथ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से एक खाता। बहुत सारे मोबाइल फोन डाटा अकाउंट सेटिंग के साथ ही आते हैं। अगर आपके पास ऐसा फोन नहीं है तो आपको खिदमत फराहम करदा के कस्टमर केयर से बात करनी चाहिए। आप अपने स्मार्टफोन पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस इस तरह शुरू कर सकते हैं। पहले अपने स्मार्टफोन के सेटिंग मेन्यू पर जाएं। स्मार्टफोन में ये ऐप मेन्यू के सेटिंग आइकन के जरिए या कभी-कभी नोटिफिकेशन बार के जरिए किया जा सकता है। सेटिंग मेन्यू में आपको वायरलेस और नेटवर्क सेटिंग तलाश करनी होंगी। ज्यादातर डिवाइसेस में मोर या मोर सेटिंग्स बटन जो भी दस्तयाब हो उस पर क्लिक करें। जब वायरलेस और नेटवर्क सेटिंग हो तो आप इंटरनेट वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क के जरिए जोड़ सकते हैं। वाईफाई से जुड़ने के लिए ज़ेली इक़दामात करें। पहले सेटिंग ऑप्शन या नोटिफिकेशन मेन्यू में वाईफाई बटन को क्लिक करके वाईफाई ऑप्शन को शुरू करें। तब आपको दस्तयाब इंटरनेट नेटवर्क की फहरिस्त नजर आएगी। अगर आपने वाईफाई नेटवर्क पहले से ही सेव कर रखा है तो ये ऑटोमेटिक ही जुड़ जाएगा, वरना आपको वाईफाई नेटवर्क जिसे आप जोड़ना चाहते हैं चुनना होगा। पासवर्ड की जरूरत हो तो उसे इंटर करें और कनेक्ट पर क्लिक करें। इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का इस्तेमाल करें। इंटरनेट के लिए मोबाइल नेटवर्क जोड़ना। पहले वायरलेस और नेटवर्क ऑप्शन में मोर सेटिंग ऑप्शन पर जाएं, तब मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करें। वहां आपको मोबाइल डाटा चेक बॉक्स को चेक करना होगा। अब इंटरनेट तक पहुंचने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का इस्तेमाल करें। कीपैड पर मबनी फोन में भी हर कोई बड़ी आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है। पहले मेन्यू में जाएं, फिर इंटरनेट का इंतखाब करें। तब या तो होम पेज का इंतखाब करें, वरना होम स्क्रीन में 0 को कुछ देर के लिए दबा कर रखें। उसके बाद वेब एड्रेस एंटर करें, तब एड्रेस एंटर करें और ओके का इंतखाब करें। वेब तलाश करने के लिए अगर आप पहली बार सर्च कर रहे हों तो सर्च का इंतखाब करें और तलाश किए जाने वाले मौजू को दर्ज करें और
सर्च का इंतखाब करें। मेरे मोबाइल में रेडियो है, मैं उसे कैसे सुन सकता हूँ? रेडियो सुनने के लिए पहले स्टैंड बाय मोड में मेन्यू दबाएं, तब मीडिया और फिर रेडियो पर जाएं। स्मार्टफोन होने पर मेन्यू में रेडियो आइकन पर टैप करें। फिर फोन को हम आहंग हेडसेट से जोड़ें। ये एक एंटीने की तरह काम करता है। उसके बाद ऑटोमेटिक या मैनुअल ट्यूनिंग ऑप्शन का इंतखाब करके जो रेडियो चैनल आप सुनना चाहते हैं उसका इंतखाब करें। चैनल सेव का ऑप्शन चुनकर चैनल सेव करें। तब ऊपर नीचे स्क्रॉल करके वॉल्यूम सेट करें। रेडियो बंद करने के लिए ऑप्शन और फिर स्विच ऑफ का इंतखाब करें। मुझे ये भी बताने दें कि मोबाइल फोन पर गीत कैसे लगाते हैं। पहले स्टैंड बाय मोड में मेन्यू दबाएं, तब फोन में दस्तयाब एप्लीकेशन को देखने के लिए मल्टीमीडिया मेन्यू खोलें। म्यूजिक एप्लीकेशन मीडिया या गैलरी की शक्ल में दिखाया गया हो सकता है। तब म्यूजिक या साउंड का इंतखाब करें। अपने मीडिया प्लेयर पर दस्तयाब नग़मे ब्राउज करें और उनमें से अपनी डिवाइस पर बजाने के लिए एक का इंतखाब कर बजाएं। बजाना रोकने के लिए या उसे दोबारा बजने देने के लिए प्ले या पॉज की को दबाएं। एक ही बटन प्ले और पॉज का काम करता है। म्यूजिक प्लेयर से निकलने के लिए बाईं तरफ से लाल बटन को दबाएं। स्मार्टफोन में पॉज बटन दबाएं। अब यहाँ कुछ तरीके हैं कि मोबाइल फोन से तस्वीर कैसे लें। पहले स्टैंड बाय मोड में मेन्यू दबाएं, मीडिया चुनें और फिर कैमरा चुनें। स्मार्टफोन होने पर कैमरा आइकन तलाश कर उसे दबाएं। तब डिस्प्ले स्क्रीन को व्यू फाइंडर की तरह इस्तेमाल करें। ऊपर नीचे खिसकाकर जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। स्मार्टफोन में अपनी उंगलियों की चुटकी को फैलाकर डिस्प्ले का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तस्वीर लेने के लिए सिलेक्ट या यस बटन का इंतखाब करें। स्मार्टफोन में कैमरा आइकन तलाश कर उस पर टैप कर तस्वीर क्लिक करें। सेव बटन को दबाकर तस्वीर सेव करें। स्मार्टफोन में एल्बम या गैलरी में खुद ही सेव हो जाती है। वीडियो कैसे रिकॉर्ड करें? मेन्यू में जाकर फोटो और फिर वीडियो कैमरा का इंतखाब करें। स्मार्टफोन होने पर कैमरा आइकन दबाएं, तब स्क्रीन के नमूदार होने पर व्यू फाइंडर की तरह इस्तेमाल करें। जूम इन और जूम आउट करने के लिए ऊपर नीचे स्क्रॉल करें। स्मार्टफोन में अपनी उंगलियों की चुटकी को फैलाकर या सिकोड़कर स्क्रीन के एरिया का साइज बदल सकते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए रिकॉर्ड का इंतखाब करें। स्मार्टफोन में होने पर स्क्रीन पर मौजूद छोटे लाल आइकन को दबाएं। रिकॉर्डिंग रोकने के लिए स्टॉप का बटन दबाएं। स्मार्टफोन में होने पर लाल आइकन पर फिर से टैप दें। सेव बटन को दबाकर तस्वीर को सेव करें। स्मार्टफोन में तस्वीर एल्बम या गैलरी में खुद ब खुद ही सेव हो जाती है। मोबाइल फोन और स्मार्टफोन जल्द हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? कैलकुलेटर की मदद के जरिए। पहला स्टैंड बाय मोड में मेन्यू दबाएं, तब ऑर्गेनाइजर और फिर कैलकुलेटर का इंतखाब करें। स्मार्टफोन होने पर मेन्यू में कैलकुलेटर आइकन को तलाश करें और उस पर टैप करें। फोन के नंबर पैड का इस्तेमाल कर नंबर लिखें। फिर जोड़ने, घटाने, ज़रब करने या तक़सीम फंक्शन का इंतखाब करें। फिर दूसरा नंबर लिखें। जवाब जानने के लिए इक्वल का निशान दबाएं। शुक्रिया दीदी, आपकी वजह से मुझे मोबाइल फोन के बारे में इतनी मालूमात हासिल हुई। मुझे टैबलेट में भी दिलचस्पी है। क्या आप उनके बारे में जानती हैं?
ہاں روہن، بالکل. چلو ہم ٹیبلٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. ٹیبلٹ کمپیوٹر کی چھوٹی، ہلکی اور زیادہ منظم شکل ہے. یہ بغیر تار کے اور پورٹیبل ہے، یعنی انہیں کہیں بھی آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے. ان میں اطلاعات تک پہنچنے کے لیے یا پروسیس کرنے کے لیے ٹچ یعنی چھو کر کمانڈ دی جا سکتی ہے. ٹیبلٹ میں وہ آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں جو گرافیکل یوزر انٹرفیس یعنی GUI دستیاب کراتے اور ایپلیکیشن کو چلاتے ہیں. ٹیبلٹ کے مقبول آپریٹنگ سسٹم ہیں اینڈرائیڈ، ونڈوز اور iOS. ٹیبلٹ خاص طور سے 2 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں، فون سہولت کے ساتھ اور بغیر فون سہولت کے. ٹیبلٹ جو کال سہولت کے ساتھ ہوتا ہے اس میں سم کارڈ کے لیے جگہ ہوتی ہے. آپ کو کال کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اور میسج بھیجنے اور حاصل کرنے کے لیے ایک سم کارڈ اور کسی موبائل نیٹ ورک کے کنیکشن کی ضرورت ہوگی. ٹیبلٹ جن میں کال سہولت نہیں ہوتی اس میں سم کارڈ کے لیے سلاٹ نہیں ہوتا، لیکن ان میں دوسری سبھی خصوصیات ہوتی ہیں. تب بھی آپ انٹرنیٹ کے استعمال سے کال کر سکتے ہیں. چلو اب ہم ٹیبلٹ کی کچھ خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں. زیادہ تر ٹیبلٹ ذیلی خصوصیات کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کال کرنے کے لیے، کال حاصل کرنے کے لیے، میسج بھیجنے اور حاصل کرنے کے لیے، نغمے سننے کے لیے، تصویر لینے اور ویڈیو بنانے کے لیے، ویڈیو دیکھنے کے لیے، ای کتاب پڑھنے کے لیے، انٹرنیٹ چلانے کے لیے، ای میل بھیجنے اور حاصل کرنے کے لیے، موسیقی، تصویر اور ویڈیو دوسروں سے ساجھا کرنے کے لیے. ذیلی طریقے سے ٹیبلٹ پر موسیقی سنی جا سکتی ہے. ایپلیکیشن مینیو پر جائیں، تب میوزک پر ٹیپ کر دیں اور بیک گراؤنڈ میوزک کو انٹرفیس کریں. اب آپ کو میوزک فائل کی فہرست کو حال ہی میں البم، گلوکار، نغمے، پلے لسٹ میں معقول متبادل کا انتخاب کر کے خانہ آرازی کر سکتے ہیں. پھر نغموں کو 1 سیکنڈ کے لیے دبائیں جس سے آپشن مینیو ظاہر ہوگا. اس کے بعد آپ پلے، ایڈ ٹو پلے لسٹ، شاپ فار آرٹسٹ، ڈیلیٹ اور سرچ کا انتخاب کر سکتے ہیں. تب پلے پر ٹیپ کر دیں اور پلے بیک انٹرفیس کو انٹر کریں اور پھر بجانے کے لیے نغموں پر ٹیپ دیں. ذیلی طریقے سے ٹیبلٹ میں تصویر لی جا سکتی ہے. ایپلیکیشن مینیو پر جائیں اور کیمرہ آئیکن پر ٹیپ دیں. کیمرہ انٹرفیس کو انٹر کریں. تب فوٹو موڈ کو چننے کے بعد پسندیدہ فوٹو موڈ پر ٹیپ دیں. کیمرے کو سبجیکٹ پر مرکوز کریں. آٹو فوکس کو شروع کرنے کے لیے اسکرین پر کسی مقام کو چھوئیں اور دبائے رکھیں. تصویر لینے کے لیے انگلی اٹھائیں. ٹیبلٹ سے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے ایپلیکیشن مینیو پر جائیں، کیمرہ آئیکن پر ٹیپ دیں اور کیمرہ انٹرفیس کو انٹر کریں. تب ویڈیو موڈ چننے کے لیے فوٹو موڈ میں پسند کیے گئے آئیکن پر ٹیپ دیں. اب کیمرے کو سبجیکٹ کی طرف موڑ دیں. ٹیپ دے کر ریکارڈنگ شروع کریں. بند کرنے کے لیے ٹیپ دیں. تصویر یا ریکارڈ کیے گئے ویڈیو کو مٹانے کے اقدامات. جس تصویر یا ویڈیو کو آپ مٹانا چاہتے ہیں اسے تلاش کریں. ٹریش آئیکن دیکھنے کے لیے اسکرین پر ٹیپ دیں. فوٹو یا ویڈیو کو مٹانے کے لیے اس پر ٹیپ دیں. آپ فوٹو اور ویڈیو اس طرح دیکھ سکتے ہیں. پہلے البم تلاش کر اس پر ٹیپ دیں. پھر جس فوٹو یا ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں اس پر ٹیپ دیں. آگے کے فوٹو دیکھنے کے لیے بائیں طرف اور پیچھے کے فوٹو کے لیے دائیں طرف فلک کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے ذیلی اقدامات کریں. مینیو سے پکچر یا البم کو کھولیں. اب
ग्रिड व्यू या लिस्ट व्यू का इस्तेमाल कर जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उसे खोलें। अगर प्लेबैक नहीं चल रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए स्क्रीन पर टैब दें। वीडियो रोकने के लिए ज़ैली इक़दामात करें। जब वीडियो चल रहा हो तो प्लेबैक कंट्रोल देखने के लिए स्क्रीन पर टैब दें। उसके बाद वीडियो को रोकने या चलाने के लिए पॉज या रीस्टार्ट पर टैब दें। वीडियो पीछे करने या तेजी से आगे बढ़ाने के इक़दामात हैं। जब वीडियो चलने के दौरान प्लेबैक कंट्रोल देखने के लिए स्क्रीन पर टैब दें। उसके बाद वीडियो को तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रोग्रेस बार मार्कर को दाईं तरफ और पीछे ले जाने के लिए बाईं तरफ खींचें। टैबलेट में ई बुक पढ़ने के लिए पहले टैबलेट में तनसीब किए हुए डिफ़ॉल्ट बुक रीडर पर जाएं, फिर बुक रीडर आइकन पर टैब दें। उसके बाद पहले से तनसीब की हुई किताबों में से जो किताब पढ़नी है उसका इंतखाब करें। फिर किताब पढ़ना शुरू करने के लिए बुक्स। मैंने सुना है कि आप टैबलेट से ईमेल भेज या हासिल कर सकते हैं। हाँ रोहन, टैबलेट पर तनसीब की हुई मखसूस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके तकरीबन सभी पॉपअप या IMAP ईमेल पतों का इस्तेमाल करके ईमेल भेजने या हासिल करने के लिए कर सकते हैं। चलिए हम आपको टैबलेट में ईमेल लिखने के तरीकों के बारे में बताते हैं। मेन्यू में इंटरनेट ब्राउज़र आइकन पर क्लिक करें, फिर ईमेल आइकन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसके ऊपर एक उकी बार होगा। जिस ईमेल सर्विस देने वाले का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका URL एंटर करें। मिसाल के लिए www.gmail.com। अब दिए गए मकाम पर यूजर नेम और पासवर्ड डालें और साइन इन टैप करें। यहाँ इस सफ़े पर कंपोज या राइट न्यू पर टैप दें। नई विंडो में टू की जगह पर भेजे जाने वाले का ईमेल आईडी डालें। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट एंटर करें। बीच की खाली जगह पर मैसेज लिखें। उसके बाद सेंड आइकन पर टैप दें। मौसूल ईमेल को पढ़ने के लिए पहले जब आपको कोई ईमेल मौसूल होगी तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक लिफाफा जाहिर होगा। आइकन को देखने के लिए स्क्रीन को नीचे खिसकाएं, फिर मेन्यू में ईमेल भेजने वाले के आइकन पर जाएं। अब आइकन पर टैप दें। स्क्रीन पर आपका मेल इनबॉक्स खुल जाएगा। ईमेल पर टैप दें और उसे पढ़ें। हम किस फाइल को टैबलेट पर कैसे तलाश कर सकते हैं? टैबलेट में फाइल या फोल्डर तलाश करने के दो तरीके हैं। आप या तो टैबलेट पर मौजूद फाइल मैनेजर का इस्तेमाल करें या ऑनलाइन सर्च इंजन का जो होम स्क्रीन पर है। फाइल मैनेजर का इस्तेमाल करके होम स्क्रीन पर फाइल मैनेजर या फाइल ब्राउज़र ऐप तलाश करें। उस पर टैप दें। ये सबसे ऊपर माई फाइल दिखाएगा। फहरिस्त से अपनी फाइल या फोल्डर को तलाश करें। उसे खोलने के लिए उस पर टैप दें। सर्च इंजन का इस्तेमाल करके होम स्क्रीन पर मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह नजर आने वाले सर्च आइकन को तलाश करें। उस पर टैप दें जिससे एक नई विंडो जाहिर होगी। आप देखेंगे कि उस पर एक उफ़क़ी टैब में सर्च लिखा होगा। उसमें जो इत्तला आप तलाश करना चाहते हैं उसके कीवर्ड्स लिखें। ऑनलाइन सर्च का नतीजा स्क्रीन पर आ जाएगा। इसको खोलने के लिए जरूरी बटन दबाएं। हम टैबलेट से पैगाम यानी मैसेज कैसे भेज सकते हैं? टैबलेट से मैसेज भेजने के लिए ज़ेरी इक़दामात करें। होम स्क्रीन पर मैसेज आइकन तलाश करें या मेन्यू पर टैप दें। सभी एप्लीकेशंस में मैसेज आइकन तलाश करें।
मैसेज पर टैप करने पर आप मौसूल पैगामात की फहरिस्त देखेंगे। राइट न्यू तलाश करें, जो कि स्क्रीन पर एक लिफाफे के साथ जमा या पेंसिल के साथ जमा के निशान के जरिए जाहिर तलाश किया जाता है। उस पर टैप दें। टू कॉलम में पाने वाले के नाम के कुछ हरूफ लिखें। आप कॉन्टैक्ट बुक के कुछ नामों की फहरिस्त देखेंगे। किसी नाम पर टैप करें, वो नाम टू कॉलम में छप जाएगा। राइट मैसेज पर टैप दें और अपना मैसेज लिखना शुरू करें। मुताल्लिका आइकन पर टैप दें। आप फाइल, दस्तावेज, फोटो या म्यूजिक फाइल के साथ जोड़ सकते हैं। सेंड पर टैप दें। आपका मैसेज भेज दिया जाएगा। इस तरह आप मौसूल पैगाम पढ़ सकते हैं। जब आपको मैसेज मौसूल होगा तो स्क्रीन पर आपको मैसेज आइकन नजर आएगा, या होम स्क्रीन के मैसेज पर एक नंबर लिखा पाएंगे जो कि मौसूल नए पैगामात की तादाद दिखा रहा होगा। उस पर टैप दें। ये मैसेज विंडो खोलेगा जिसमें मौसूल पैगामात की फहरिस्त होगी। जो मैसेज आप पढ़ना चाहते हैं उस पर टैप दें। हम टैबलेट के जरिए इंटरनेट कैसे चला सकते हैं? बिल्कुल मोबाइल की ही तरह टैबलेट के जरिए इंटरनेट दो तरह से चला सकते हैं। पहला, वाईफाई से जोड़कर टैबलेट वाईफाई ज़ेली तरह से जोड़ा जाता है। पहला, आप अपने टैबलेट की सेटिंग मेन्यू में जाएं। वाईफाई के साथ हम आहंगी तस्वीर में दी गई है। आपको दस्तयाब इंटरनेट नेटवर्क की फहरिस्त नजर आएगी। आपको वाईफाई नेटवर्क का इंतखाब करना होगा जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। अगर पासवर्ड की जरूरत हो तो पासवर्ड डालें और कनेक्ट पर क्लिक करें। इंटरनेट ब्राउजर का इस्तेमाल कर इंटरनेट चलाएं। आप टैबलेट को मोबाइल नेटवर्क के जरिए भी इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। इसका तरीका ये है। पहले ये तय करें कि आपके टैबलेट में मोबाइल नेटवर्क वाला सिम कार्ड है, तब टैबलेट के जरिए इंटरनेट से जोड़ें। आप नोटिफिकेशन बार को नीचे खींच सकते हैं और मोबाइल डाटा का इंतखाब कर सकते हैं, या आप वायरलेस नेटवर्क में मोर सेटिंग में जा सकते हैं। तब मोबाइल नेटवर्क बटन पर क्लिक करें जहां आपको मोबाइल डाटा चेकबॉक्स को चेक करना होगा। एक बार क्लिक किए जाने के बाद आपका टैबलेट मोबाइल नेटवर्क मौसूल करना शुरू कर देगा। दीदी, आपने कहा था कि कुछ टैबलेट फोन की तरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम ये कैसे कर सकते हैं? जब आपका टैबलेट बंद हो तो आपको उसके सिम कार्ड स्लॉट में वैलिड जीएसएम सिम कार्ड डालना होगा। चलो हम देखते हैं कि टैबलेट से फोन कॉल कैसे कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर रिसीवर आइकन पर टैप दें। आप जो फोन करना चाहते हैं उस नंबरों को दबाएं। रिसीवर आइकन पर टैप दें। उसके बाद जब वो जुड़ जाएगा तो आप बात कर सकते हैं। अगर आप फोन बुक या कॉन्टैक्ट फहरिस्त से किसी को फोन करना चाहते हैं तो ज़ेली इक़दामात करें। पहले अपने टैबलेट की फोन बुक या कॉन्टैक्ट फहरिस्त में जाएं, फिर उस नाम को तलाशें जिससे आप बात करना चाहते हैं। उसके बाद जिससे राब्ता करना है उसके नाम पर टैप दें। फिर जिससे राब्ता करना है उसके नंबर पर टैप करें। फिर राब्ता होने पर बात करें। चलो मैं तुम्हें टैबलेट की दूसरी खुसूसियात के बारे में बताती हूँ। सच में? रोहन, टैबलेट में कई जुबानें शामिल होती हैं। आप टैबलेट को जिस जबान में चलाना चाहते हैं उस जबान का इंतखाब कर सकते हैं। चलो अब हम टैबलेट में जबान सेट करना सीखें। पहले एप्लीकेशन मेन्यू में सेटिंग पर टैप दें और फहरिस्त में से लैंग्वेज एंड इनपुट का इंतखाब करें। फिर जबान पर टैप दें और आप जबानों की फहरिस्त देखेंगे। उसके बाद पसंदीदा जबान पर टैप दें और वो जबान फौरन ही सेट हो जाएगी। यहीं पर आप
کی بورڈ کی بھی وہ زبان سیٹ کر سکتے ہیں جسے آپ ان پٹ کرتے وقت اسکرین پر دیکھنا چاہتے ہوں۔ تاریخ اور وقت سیٹ کرنے کے لیے ذیلی اقدامات کریں۔ ایپلیکیشن مینیو میں سیٹنگ پر ٹیب دیں اور فہرست میں سے تاریخ اور وقت کا انتخاب کریں۔ آٹومیٹک کو چنیں جس سے تاریخ اور وقت خود ہی نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے سیٹ ہو جائے گا، یا آٹومیٹک کو خارج کر کے اپنے مطابق سیٹ کریں۔ دیدی، آپ مجھے ٹیبلٹ میں ایپلیکیشن کو انسٹال کرنا سکھا سکتی ہیں؟ ہاں بالکل، ایپلیکیشن یا ایپ ٹیبلٹ کی خصوصیات ہوتی ہیں جو آپ کی خدمات حاصل کرنا اور آسان بنا دیتی ہیں۔ ٹیبلٹ میں نئے ایپلیکیشنوں کو پانے کے طریقے۔ پہلے ٹیبلٹ کے مینیو میں جائیں اور پھر مینیو میں پلے اسٹور پر ٹیب دیں۔ اگر مفت ایپلیکیشن ہے تو آپ صرف انسٹال بٹن پر ٹیپ کریں اور آپ کا ٹیبلٹ خود ہی ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کر لے گا۔ اگر ایپ کی قیمت ہے تو آپ ایک بائی بٹن پر کلک کریں تو ایک پاپ اپ باکس کھل جائے گا جس میں یہ سوال ہوگا کہ کیا آپ ایپ خریدنا چاہتے ہیں؟ اوکے کا متبادل چن کر جس کی تصدیق کی جانے پر آپ کو ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کی معلومات بھرنی ہوگی۔ پھر ایپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے لیے اسکرین پر آنے والی ہدایات پر عمل کریں۔ اب بس ابھی کے لیے اتنا ہی۔ روہن، کیا موبائل فون اور ٹیبلٹ کے بارے میں جاننا مزیدار رہا؟ ہاں بالکل دیدی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں موبائل فون اور ٹیبلٹ کے بارے میں بہت جان گیا ہوں۔ ارے کوئی بات نہیں، اب ہم لوگ مزیدار کارکردگی میں حصہ لیں گے۔